Hello students, welcome to the YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is Mrs. Deepa Vallakati, the subject teacher of science. Today we are going to learn chapter number 21, Busy at Work, Our Internal Organs from standard 5th. So children, I would like to ask one question to you all. Have you seen any of the time the ants? What they will do? They will always be busy by doing some of the work. Yes, no? In the same way, our body and our internal organs also continuously keeps on working. Okay, that is why the chapter name is Busy at Work, Our Internal Organs. So let's take one of the activity. Now we have to do what? Take a large sheet of thick paper. Okay, and about the height of the child in the class, एक बच्चे का height के हिसाब से एक outline उसका draw कर दीजिए, which has shown in the picture down. Okay, and what we need to do that, we need to draw the outline of the body, and we have to call and we have to recall that pointing out the brain, lungs, heart and stomach on that particular cardboard. Okay, so by which we can understand the position and the place of these organs. Now recall the following details about each of the organ. In which cavity of the body is situated? Okay, that brain is situated, where it is situated, where the heart is situated. This we have to understand. Okay, and what are the functions of it? Okay, this we have already learned in the previous chapters. Okay, which are the bones that protects it? Okay, ये सब हम लोग देख लिए हैं कि हमारा कौन से इंटरनल ऑर्गन से वो कौन से कैविटी के अंदर आते हैं. एब्डोमिनल कैविटी में आता है या फिर बैक साइड आता है. ओके, थ्रोट कैविटी में आता है या फिर ये सब वी हैव understood it in the earlier chapters in the last year also. Okay, and which bones that protects these internal organs, that is rib cage, correct? No, now processes like the respiration, digestion go on inside the body continuously with the help of certain organs. ये सब चीज़ें हैं ना, respiration रहने दो, digestion रहने दो, thinking रहने दो, this all continuously keeps on going in our body. Okay, with the help of certain organs, just like the heart, brain, stomach, etc. Let us learn something about these processes and the organs that carry them out. Okay, use a watch to count how many times you are breathe in 1 minute. एक स्टॉप वॉच ले लीजिए और आप काउंट कीजिए कि 1 मिनट के अंदर आप कितने बार ब्रीद इन कर रहे हैं एक सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के. From this, work out approximately how many times you breathe in an hour. Okay, now let us learn about the respiration. What is respiration? We need air, water, food to live, correct? It is necessary for the body to get the continuous supply of the oxygen. So हमारे बॉडी को क्या ज़रूरत पड़ती है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. इसकी वजह से हम लोग बार बार ऑक्सीजन लेते रहते हैं फ्रॉम द एयर. वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू ब्रीदिंग. That is why we breathe continuously. Understood? In our body there are organs that carry out the work of respiration. हमारे बॉडी के अंदर कुछ organs हैं जो respiration को carry out करते हैं. Okay? Read their names in the diagram on the page next and also their descriptions. Now in this we can see the respiratory system, that what are the organs involved in it? That is nose, trachea, lungs and the diaphragm. ओके, द डायग्राम अबव शोज अवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को दिखाते हैं. व्हेन वी इनहेल, दैट मीन्स व्हेन वी टेक द एयर इनटू आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, गोज इनटू वेयर इट गोज इनटू द ट्रेकिया एंड थ्रू इट्स ब्रांचेस. ओके, ट्रेकिया से है ना वो अपने ब्रांचेस में जाके कहाँ पे सेटल होती हैं? लंग्स में सेटल होता है ये हेयर. ओके, out of that we will intake the oxygen. In the lungs, these branches divide further into the smaller and smaller branches. lungs के अंदर ये branches कैसे होंगे? और छोटे छोटे तरीके में divide होंगे. At the end of the last branch, जहाँ पे एक branch end होती है लास्ट में, वहाँ पे air का एक bag जैसा रहता है जिसे हम बोलते हैं alveoli. Okay, between the thoracic cavity
The abdominal cavity, there is an organ like flexible sheet, it is called a diaphragm. ओके देखो हमारी thoracic कैविटी के बीच, thoracic कैविटी और एब्डामिनल कैविटी, ओके इन दोनों के बीच में है ना एक सैक जैसा फ्लेक्सिबल शीट दिख रहा है, दिखा आपको? ओके दिस इज कॉल्ड डायफ्राम. ओके द डायफ्राम इन इट्स मूवमेंट, व्हेन द डायफ्राम मूव डाउनवर्ड वी ब्रीथ इन. ओके जब वो नीचे की तरफ चला जाता है तब हम लोग हवा को अंदर लेते हैं, दैट मीन्स वी इनहेल. ओके एंड इनकमिंग एयर फिल्स इन द एल्वोइली ऑफ द लंग्स. तो ये डायफ्राम जब डाउनवर्ड होती है तब हमारे इसमें हवा एल्वोइली के अंदर भरा हुआ रहता है लंग्स में से. व्हेन द डायफ्राम मूव्स अप द एयर इन द लंग्स इज पुश्ड आउट, दैट मीन्स वी एक्सेल. ओके exchange of gases, when the outside air reaches the alveoli the oxygen in it passes into the thin blood vessels around the alveoli. जब outside air है ना alveoli के अंदर आती है तब क्या हो जाती है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है ना वो तीन ब्लड वेसल्स के बीच में से alveoli में आ जाती है. ओके विद द ब्लड इट इज़ कैरिड आउट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और जब ये ब्लड के साथ में मिल गया है, ये एल्वोइली के अंदर प्रेजेंट हुआ एयर क्या होता है, ऑक्सीजन वो है ना ब्लड के साथ मिक्स होता है और ये ब्लड सारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती रहती है. इट विल सर्कुलेट एंटायरली इन द ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. एट द सेम टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ब्रॉट बाय द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंटर्स इन द एयर इन द एल्वोइली. सो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाती है, जब हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे दूसरे वाले कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो आ रहा है, वो सब है ना हमारे बॉडी से इकट्ठा करके वो फिर से रिटर्न लाता है कहाँ पे, एल्वोइली में. देन वो एल्वोइली क्या करती है, ये डायफ्राम जब फूल जाती है अपवर्ड की तरफ हो जाती है तब ये एल्वोइली के ऊपर प्रेशर आती है और वो लंग्स के ऊपर प्रेशर डाल के ये हवा को बाहर निकालती है. सो इन दिस वे वी एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड ओके फ्रॉम गिवन आउट विद द एयर. ओके इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहता है इन द वेपर, वाटर वेपर. इन दिस वे एन एक्सेल ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस टेक्स प्लेस इन एन एल्वोइली. ओके नाउ what are the constituents of the air? The constituents of the air are dust particles, smoke, all these things, correct no? So इसमें क्या हो जाती है, so whenever we inhale whatever air is present and the whatever mucus is present in our nose, no, the dust particles will get stopped over there only and we can get the purified air. Okay, the dust and the smoke particles may be present in the air in the atmosphere. They may even be डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो ये डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकती है जो डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं. सो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी. द इनर लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैज़ अ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज अ सीलिया. ओके सो ये सीलिया क्या करती है, ये इनर लाइनिंग रहती है. देर इज ऑल्सो लेयर ऑफ द स्टिकी सब्सटेंस इज कॉल्ड द म्यूकस. ओके the dust and the smoke particles stick to this substance, thus harmful substances in the air cannot reach the lungs. Okay, now let us learn about the effects of the smoking. Some of the people are having a bad habits like smoking. Yes no, कुछ smoke करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, that if one keeps smoking over a long period time the toxic substance in the smoke collect in the respiratory tract. Okay, जो smoke के वजह से always याद रखो कोई भी चीज़ को हम लोग जलाते हैं सो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन निकलता है, करेक्ट नो. सो ये कार्बन क्या है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है. व्हेन वी कीप्स ऑन स्मोकिंग सो व्हाट विल हैपन, जो सिगरेट के अंदर प्रेजेंट टॉक्सिक सब्सटेंस है वो वाला और जो स्मोक करने की वजह से जो कार्बन रिलीज होते हैं वो, द टू थिंग्स आर रियली हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड दे विल गेट कलेक्टेड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जाके हमारे लंग्स के अंदर बैठ जाती है. ओके एज अ रिजल्ट द एयर इन दैट एंटर्स द लंग इज़ नॉट सफिशिएंटली प्योरीफाइड. इसकी वजह से क्या हो जाती है, जो एयर हम लोग लेते हैं वो पूरी तरीके से प्योरीफाई नहीं हो पाते हैं एंड द इम्प्योरिटीज़ वॉट एवर इज प्रेजेंट इन द एयर नो दे विल डायरेक्टली कम एंड एक्यूमुलेट इन द लंग्स. वो
लंग्स के अंदर आके कलेक्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होते हैं, जब कोई कचरा आके कोई पाइप में अटकती तो वो पाइप काम करेगा क्या? नहीं। इन द सेम वे दिस टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर एक्यूमुलेटेड विच आर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स, नो। सो इसके वजह से लंग्स में एयर प्रॉपरली पास नहीं हो पाएगा, सो लंग का काम करना बहुत क्षमता कम हो जाएगा। द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग डिजीजेस of the lungs will increases. Okay, now the solid particles in the tobacco, smoke from the cigarettes or बीड़ी from the sticky layer inside the alveoli. Okay, ये क्या करते हैं, जब हम लोग कोई इंसान लोग टोबैको या फिर सिगरेट्स या फिर बीड़ी जो स्मोक करते हैं ना, उसकी वजह से क्या हो जाती है, ये जो इसके अंदर से निकलने वाला स्टिकी लेयर, स्टिकी सब्सटेंस रहता है ना, वो एल्वोइली को जाके चिपक जाता है। सो एल्वोइली का काम क्या रहता है, विच विल रिलीज द ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, करेक्ट ना। सो ये क्या होएगा, एल्वोइली जब ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलने की चांसेस नहीं रहेगा। दिस reduces the amount of oxygen supplied to the body. In addition, smoke toxic substances in the tobacco also enter in the alveoli. These are ill effects led to the diseases of respiratory organs, including the life-threatening diseases like the lung cancer. Lung cancer भी होने का chances रहता है. Okay. Next one is passive smoking. If there are people around us who smoke, then we may have to face the consequences of smoking even if we do not smoke ourselves. ऐसा होता है कि बोलते हैं ना, बुरे इंसान के आजू बाजू में रहने से हम भी बुरे बन जाते हैं। यस ना, द पीपल ऑफन सेज दिस। द सेम वे इफ वी कीप्स ऑन staying with the people who smokes, although we doesn't smoke, but it will definitely will gonna affect on our health too. Okay, that is why there is now a ban on smoking in the public places. जो इसीलिए आजकल के ज़माने में पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है. अ न्यू वर्ड दैट इज अ ग्लैंड. व्हाट इज ग्लैंड? एन ऑर्गन दैट सीक्रेट अ सर्टेन सब्सटेंस. सीक्रेशन इज व्हाट? सीक्रेशन मीन्स रिलीजिंग some of the liquids, that is called a gland. Okay, now let us learn about the digestion system. Let us now learn something about the alimentary canal, the digestive organ and their functions. Now alimentary canal, understand about the alimentary canal. Okay, what is this alimentary canal? The food we eat is digested in our body, correct? No, that is substances that can mix with the blood आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फूड. जो ब्लड के अंदर एनर्जी आने वाला रहता है वो कहाँ से आता है? जो सब्सटेंसेस जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें से आता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब इनसाइड आवर बॉडी. एक बहुत बड़ा ट्यूब जैसा कैनल रहता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल. यू कैन सी इट देयर फ्रॉम द ओएसोफेगस. ओके, नाउ द अपर एंड ऑफ द tube is mouth and the lower end of is called the anus. Okay, so upper end कहाँ से start होता है ओएसोफेगस का? माउथ से लेकर लास्ट कहाँ पे एंड होता है? एनस तक. even if there is a continuous tube going from the mouth to the anus, the shape of this tube is not the same in all the parts, which you can see here. Okay, माउथ की यहाँ पे से नीचे जाने के बाद ओएसोफेगस है. when afterwards it directly enter into the stomach, then afterwards it will enter into the small intestine, afterwards it enter into the large intestine, then afterward the leftover food and the undigested food which is been thrown out of our body through the anus. See, the different parts of the alimentary canal have the different structures and the functions. Alimentary canal के अंदर अलग अलग parts रहते हैं और सबका अलग अलग काम रहता है. These different parts are called the digestive organs. ये सारे parts को बोलते हैं digestive organs. Certain glands outside the alimentary canal assist the process of digestion. Now let us understand about the digestive organs. Learn about the digestive organs. That the process of digestion begins as soon as the food is taken into the mouth. जैसे ही हम अपने फूड माउथ के अंदर रखते हैं वहीं से हमारा डाइजेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है. द टीथ, टंग एंड द सलाइवा ऑल हेल्प्स टू कन्वर्ट द फूड इनटू द सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल्स बोलते हैं. यस नो, विच इज़ ईजी टू स्वॉलो. अदरवाइज हम लोग रॉ फूड को डायरेक्टली कंज्यूम कर पाएंगे, स्वॉलो कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल. जब सलाइवा के थ्रू हम लोग हमारे फूड को चबाएंगे, च्यू करेंगे, देन इट विल बिकम अ
very soft, then we can swallow it. The balls passes through the esophagus into the stomach. ये esophagus के through stomach के अंदर enter होती है. The stomach is shaped like a bag. It is shaping of what? The stomach shaped like bag. Here the food is churned. यहाँ पे क्या होता है? फूड को चर्न होता है. जैसा मिक्सी के अंदर आप कोई सामान को डाल के, कोई और एलिमेंट को डाल के आप चर्न करते हैं ना, इन द सेम वे यहाँ पे भी वैसे ही होता है. द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक ब्रिंग आउट सम डाइजेस्टिव प्रोसेसेस. ये जो जूसेस हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेसिंग की वजह से होती है ना, ये भी हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेसिंग को बढ़ाते हैं. एट द सेम टाइम सम डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स इन द फूड ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. अंडरस्टूड. द फूड चेंजेस इनटू द थिन स्लरी इन द स्टमक. और तभी ये फूड कैसा होता है? एकदम एक लिक्विडिफाइड स्लरी जैसा होता है स्टमक के अंदर. देन इट इज़ पास्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. देन आफ्टरवर्ड इसको स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पुश किया जाता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एन एडल्ट इज़ अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग. सो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एक ग्रोन अप पर्सन के अंदर मिनिमम 7 मीटर्स रहता है, मिनिमम 7 मीटर्स लॉन्ग रहता है. द डाइजेस्टिव जूसेस इज द इंटेस्टाइन ब्रिंग अबाउट द सेवरल डाइजेस्टिव प्रोसेसेस. ओके, जो डाइजेस्टिव जूसेस रहता है ना, वो भी वहाँ पे डिफरेंट डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में हेल्प करता है. द सीक्रेशन ऑफ द सम ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ द डाइजेशन. एज अ रिजल्ट ऑल द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस सर्टेन सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड. सो इसकी वजह से, ये डाइजेस्टिव प्रोसेसिंग की वजह से, कुछ सीक्रेट जूसेस के वजह, सीक्रेटेड जूस मतलब रिलीज़ हुआ जूस की वजह से भी हमारे इसमें से जो एनर्जी है ना, उसमें हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं. जस्ट लाइक शुगर्स के इसमें, फैट्स में, फाइबर्स में एक्सेट्रा. अंडरस्टूड. एंड एज अ रिजल्ट ऑल डाइजेस्टिव प्रोसेस आर सर्टेन substances are produced. These are useful to body and can mix it with the blood. ये क्या हो जाती है? ये हमारी ब्लड के साथ में फिर से मिल जाती है. In the small intestine they are absorbed into the blood. So whatever energies are produces, whatever secretions are produces, जो हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है, वो भले शुगर रहने दो, ग्लूकोज रहने दो, माल्टोस रहने दो, वॉट एवर इट मे बी, दैट ऑल विल गेट अब्जॉर्ब्ड इन टू द ब्लड ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन टू द ब्लड. द रिमेनिंग सब्सटेंसेस आर पास्ड इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. देन आफ्टरवर्ड वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाला दिया जाता है. देन वॉट विल हैपन इन द लार्ज इंटेस्टाइन? दैट लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1/2 meter long. Okay, otherwise 1.5 meter long. Here much of the water are remaining in the substance is absorbed into the body and the feces of the stools are formed. Okay, so क्या होता है? जो खाना हम लोग ने पचा दिया है, उसके बाद में उसके अंदर से एनर्जी पूरा स्क्वीज करने के बाद पानी बचा हुआ रहता है. वी ऑल नो दैट अ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% or 75% ऑफ water is required, correct? No. So what will happen in the large intestine? So whatever water is there, no, most of the water in that food will gonna be absorbed in the large intestine. Okay, then afterward whatever unwanted or undigested food या फिर waste food जो रहता है, या फिर waste thing जो रहता है ना हमारे body के अंदर से, वो remove किया जाता है in the form of the feces or stools. Okay, the feces collect in the rectum for some time. Okay, ये rectum के अंदर थोड़ा टाइम कलेक्ट हो जाती है. देन आफ्टरवर्ड वो हमारे बॉडी के में से एक्सपेल किया जाता है थ्रू द एनस. ओके, नाउ डू यू नो दैट द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अगर कुछ लोगों को आदत रहती है खाना खाने के बाद में, खाना खाने से पहले पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं. ओके, सो इट विल लीड टू अ कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स. ओके, सो हमारा एक हेल्दी बॉडी का क्या बता सकते हैं? जिसका बॉडी अपने आप क्लीन कब होता है? जब हम लोग हमारा स्टूल्स या हमारा जो अनवांटेड थिंग है बॉडी में से वो रिमूव होता रहता है, तब वो बॉडी को हम कह सकते हैं वो एक हेल्दी बॉडी है. नन ऑफ द अदर टास्क इन द बॉडी कैन गो ऑन विदाउट वाटर. ओके, द वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डाइजेशन इन द वाटर is water that is used for all the processes in the body. Yes ना, हमारे each and every
काम होने के लिए बॉडी के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर वी रिक्वायर द वाटर. सो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक द एडिक्वेट क्वान्टिटीज ऑफ द वाटर. मिनिमम 3 to 4 glasses आफ्टर हाफ एन आवर बिफोर लंच या फिर डिनर में हम लोग पी लेने चाहिए. द अपर एंड ऑफ बोथ द ऑइसोफेगस एंड द विंड पाइप ओपन इन द थोरैक्स नेक्स्ट टू द ईच अदर. ओके, क्या होता है, ये अपर हैंड है ना जो ऑइसोफेगस का, वहाँ पे है ना विंड पाइप ओपन होता है. ये किधर रहता है, थोरैक्स कैविटी के अंदर, थ्रोट कैविटी के अंदर रहता है. व्हेन फूड इज स्वॉलोड द विंड पाइप रिमेन क्लोज्ड. जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं ना तो ये विंड पाइप क्लोज हो जाती है ताकि डायरेक्टली खाना जो भी है ना वो डायरेक्टली हमारे नीचे चले जाए ऑइसोफेगस के थ्रू. इसीलिए हम लोग जब गाय में खाते हैं या फिर बहुत हेस्टीली खाना खाते हैं ना हरी अप में, तब हम लोगों को इचकी लगते हैं. अंडरस्टूड? अवॉइड स्पीकिंग वाइल ईटिंग on the same time. Children, what is most important in our body? Okay, for the food, that means we require teeth. So we all know that teeth is covered with the protective shell that we call enamel. Okay, enamel एक hardest substance है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है. अंडरस्टूड? सो इसीलिए हम लोग को ऑलवेज ये टीथ को क्लीन कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो भी कोरोड होने का चांसेस रहेगा या फिर teeth decay होता है. While having our meals, we enjoy many different tastes and flavors. Correct? No? We sense them using our tongue and nose. ये दोनों का स्मेल टेस्ट कहाँ से पता चलता है हमको? हमारे टंग या फिर नोज से पता चलता है. सो टंग के ऊपर हमारे यहाँ पे नोज में हमारे अगर स्मेल गंदा रहता है तो हम लोग उस फूड को खाना नहीं चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होगा. नाउ सिस्टम्स इन द बॉडी. यू हैव सीन हाउ सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट द रेस्पिरेशन. करेक्ट ना? बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके रेस्पिरेशन फॉर्म हो रहा है. इफ इवन वन ऑफ दिस ऑर्गन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विल नॉट कंप्लीट. करेक्ट ना? अगर इसमें से कोई एक भी ऑर्गन काम नहीं करेगा, ओके, रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सेम विद द डाइजेशन ऑल्सो. Okay, thus nose, trachea, lungs and the diaphragm together make the respiratory system. Now, energy for the body. We require energy for the body for doing our work. Okay, as a result of the respiration, oxygen enter into blood in the body and spread to all parts of the body. That we all know. Substances formed in the process of digestion also mix with the blood and reach all parts of the body. Of these same substances act as a fuel for the body. क्या होता है जब हम लोग रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होके वो हमारे ब्लड में एंटर होके ईच एंड एवरी सेल को पहुंचता है. इट विल रीच अप टू द ईच एंड एवरी सेल फॉर देयर फंक्शनिंग विल बिकम स्मूथ. इन द सेम वे वॉट एवर फूड वी ईट नो इट द डाइजेस्टेड constituents like carbohydrates, fats, all these things will be converted into the energy and that will be reached to the each and every cell through the blood itself. Correct? No? So we can say that these all substance will act as a fuel for the body. Okay, when the oxygen in the blood reaches the different parts of the body, it helps the slow burning of these substances. Now giving energy to the body uses this energy to carry out all kind of tasks. Now let us understand about the circulation of blood. Circulation कैसा होता है blood का? The blood carries the oxygen obtained from the air and the energy giving substances in our food to all parts of the बॉडी. बट वॉट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग. हम सबको पता है कि है ना हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होती रहती है, ये है ना सारे एनर्जी को ईच एंड एवरी सेल तक लेके जाती है. बट हाउ दिस ब्लड सर्कुलेट पूरे बॉडी में ईच एंड एवरी सेल के पास जाता कैसे है? यू नो वॉट, द हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स. करेक्ट ना? हमारे हार्ट ऑलवेज लबदब करके है ना कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्स होती है, एक ट्यूब जैसा. ये जो नेटवर्क जो कंसिस्ट रहती है ना ट्यूब्स, ये वेसल्स रहते हैं और आर्टरीज रहते हैं, जिसके वजह से हमारी ब्लड क्या होती है, एक बार पुश करती है आगे की तरफ और एक बार पंप करती है पीछे की तरफ. दैट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट दैट
those that brings blood back to the heart is spread throughout the body. The process of keeping the blood flowing through all parts of the body is called blood circulation. और ये ब्लड है ना सिर्फ ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारे चीज़ों को है ना पूरे बॉडी के अंदर पहुँचाती रहती है ईच एंड एवरी जगह पे. दैट टू इज़ मेड पॉसिबल टू द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. ओके, द हार्ट एंड द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हार्ट और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है ना ये पूरे चीज़ों को मिला के बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. एज लॉन्ग एज वी लीव द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन गोज ऑन कंटिन्यूसली डे एंड नाइट. अंडरस्टूड? Children, can you see the nervous system? There are two types of colors. You can see over there in the circulatory system. Okay. So the functions of the respiratory circulation and the digestive system are vital for the body. ये दोनों बहुत important है, circulatory and digestive system. Okay. They have to be carried out ceaselessly. Okay. These are some tasks. There are some tasks that we carry out only when we like. फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग, रनिंग, स्टडिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा. ये सब हम लोग हमारे इच्छा अनुसार करते हैं. वी डू दिस ऑल अकॉर्डिंग टू आवर विल. ओके, यू हैव लर्न दैट द कोऑर्डिनेशन मीन्स पेइंग अटेंशन टू ऑल द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ensuring that all they occur at the right time and in the right manner. ओके, कोऑर्डिनेशन का मतलब हमको पता है कि ना सब साथ में मिलजुल के रहना और मिलजुल के ही अटेंशन काम करना, डिफरेंट फंक्शंस करना. ओके, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डू द थिंग्स एट द राइट टाइम and at the right manner. Maintaining this coordination in the functioning of the brain. ये सब कहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेशन होता रहता है. स्पेशली दिस सब कोऑर्डिनेशन, ये सब का कोऑर्डिनेशन किसके साथ रहता है? हमारे ब्रेन के साथ. ओके, देर इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द ब्रेन विथ ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ओके, बॉडी के अंदर किधर भी पिन चुभता है या फिर कुछ कोई मारते हैं या फिर कहीं आपको गर्मी लगती है, ये सेंसेशन है ना पूरे हमारे बॉडी में जिधर भी कुछ भी हो रहा है वो हमको कहाँ पे पता चलता है? हमारे ब्रेन को इंटीमेशंस देते रहते हैं. एंड हाउ दिस इंटीमेशंस वी आर गेटिंग, हाउ दिस मैसेजेस वी आर गेटिंग. ओके, सो देर इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स कैरीज द मैसेज टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अंडरस्टूड? एक नेटवर्क सिस्टम है जो है ना मैसेजेस पास करती है ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट से लेकर ब्रेन तक. इसके वजह से हमको समझ में आता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है. सो द ब्रेन एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व्स आर टुगेदर आर कॉल्ड नर्वस सिस्टम. ये जो ब्रेन और नेटवर्क सिस्टम है ना मैसेज पास करने का, ये पूरा चीज़ों को मिलाया होता है नर्वस सिस्टम, विच यू कैन सी इन द बिलो पिक्चर. ओके, द नर्वस सिस्टम फंक्शंस टू कोऑर्डिनेट ऑल आवर बॉडीली फंक्शंस. ये हमारे पूरे बॉडीली फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करके रखता है. चिल्ड्रन, यू माइट हैव बीन सीन द ड्रंकर्स. यस, नो, दे विल नॉट हैव अ प्रॉपर नर्वस सिस्टम. उन लोगों को दिखाई भी नहीं देता है पीने के बाद में, और कुछ समझ में भी नहीं आता है क्या बात कर रहे क्या नहीं बात कर रहे. ओके, बिकॉज वॉट विल हैपन, ड्रिंकिंग एल्कोहल हैज़ मैनी इल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. जो अल्कोहल रेगुलरली ड्रिंक करते हैं ना उनका बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है. उन लोगों का नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है. सो उन लोगों का बॉडीली कोऑर्डिनेशन भी नहीं रहता है. ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल. नाउ इफ़ वन कीप्स ड्रिंकिंग एल्कोहल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई बहुत टाइम तक पीते रहते हैं, बहुत सालों से पीते रहते हैं, तो उन लोगों का है ना डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ख़राब हो जाएंगे. उन लोगों को अल्सर होने का चांसेस रहेगा. उसके अलावा उन लोगों का लिवर और किडनी दोनों फेलियर होने की चांसेस रहेगा. सो दिस इज़ वेरी डेंजरस टू ड्रिंक एंड स्मोक. Okay, our nervous system, our systems in the body, we have learned something about the respiratory system, digestive system, circulatory system, and system that coordinate the functions of all the system, that is brain and the nervous system. Correct? No? Besides this, there are several other systems also present in our body. What are those? Let us understand. For example, skeleton system. Skeleton system क्या करती है? हमारे बॉडी को एक प्रॉपर शेप और सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है ये हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को फ्रॉम द एक्सटर्नल effects. Okay, the excretory system. Excretory system is what? This expels the waste substances that are formed in the body. ये हमारे बॉडी के अंदर जिधर किधर भी जो वेस्ट चीज़ें हैं ना वो हमारे बॉडी में से रिमूव करती हैं.
द वर्किंग ऑफ ऑल दिस सिस्टम इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स. ये सब इतना ईजी नहीं है. दिस आर ऑल नॉट सो ईजी टू अंडरस्टैंड. दिस सिस्टम्स आर नॉट सो ईजीली मेड. Okay, they are really complex, but it is important to have information about them. Yes, no, but we should know regarding all of these things because it's regarding our body. Always remember, if the functioning of any one of our system is disturbed, okay, अगर हमारे इतने सारे systems में से कोई एक system भी disturb हो गया तो हमारे full body को झेलना पड़ेगा problems को. Yes, no, so let us take a quick recap that what we have learned in this chapter. A group of organs that together carry out some functions of the body are called system. Yes, no, जो group of organs जो है ना पूरी तरीके से काम करते रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, उसको हम systems बोलते हैं. Example, the nose, trachea, lungs and diaphragm are the organs that form the respiratory system. ये सब मिला के एक respiratory system बोलते हैं. Then afterward, mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and exclude that some of the glands and alimentary canal. These all systems together all called as a digestive system. Third one will be a fourth one, that our other systems like the circulatory system, skeleton system, excretory systems, they were also take a care of the other important functions of our body. Yes, no. Now, last but not the least, the nervous system coordinates all the functions of the body. हमारे पूरे बॉडी का फंक्शंस कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन देखता रहता है, देखभाल करने वाला है? नर्वस सिस्टम, दैट इज आवर ब्रेन ऑल्सो. ओके, फॉर अस टू लीड द हेल्दी लाइफ, ये हमारे लिए कंपलसरी होएगा कि हम लोग एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हम लोगों का सारा बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सिस्टम, जो वेदर इट कुड बी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेदर इट कुड बी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वेदर इट कुड बी ऑफ नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, skeleton system or excretory system, but these all should work properly, and this whenever these systems functions smoothly, then only we can say that we are living a healthy life. I hope that children, you people have enjoyed this lecture and understood it much better. Okay, thank you for watching this lecture.